اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہم نمبر 6 سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کی میں ایکسپلینیشن آپ سے کر رہی تھی کہ یہ گیدرنگ، زیادہ تر جو گیدرنگ ہے نا، یہ پراپرلی جو ہم مینیج کرتے ہیں، جیسے درس کے لیے کی گئی ہے یا آپ کی کلاس ہے، اس پہ یہ مینرز زیادہ لاگو ہوتے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں کسی قرآن خوانی میں، محفل نعت پہ یا کسی اور مجلس وغیرہ میں جاتے ہیں درس وغیرہ سننے کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں، پہلے آنے والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے ہی بیٹھ جائیں، یعنی کہ جہاں پہ مخاطب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ خطیب وغیرہ یا جو درس دینے والے ہیں عالم بیٹھے ہوئے تو ان کے قریب ہی بیٹھ جائیں، اور وہیں سے لائنز بنانی شروع کریں بیک سائڈ پہ، تاکہ پیچھے سے آنے والے پیچھے کی طرف آسانی سے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، کہ جہاں جگہ ملے وہاں آرام سے بیٹھ جائیں، آگے ملے پیچھے ملے جہاں بھی ملے آپ بیٹھ جائیں، اور غصہ نہیں کرنا کہ مجھے آگے جگہ نہیں ملی، یا جہاں میں بیٹھنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی وہاں میں بیٹھ نہیں پائی. مجلس میں آنے والے شخص کو چاہیے کہ غصہ نہ کرے اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. اب جب گفتگو کر رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ دوران گفتگو کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں یا زیادہ لوگوں سے کوئی مخاطب ہو، تو آپس میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کی بات کاٹنے نہیں چاہیے. اس کو بات کر لینے دینی چاہیے. جب وہ بات کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی بات کیجیے. ٹھیک ہے. اپنی باری کا ویٹ کرنا چاہیے. مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی یعنی کہ کان میں بات کرنا، یہ لائٹس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کان میں بات کرنا، سرگوشی کان میں بات کرنا، بات نہیں کرنی چاہیے. یہ آداب مجلس کے خلاف بات ہے. اور مجلس میں مخاطب کی بات غور سے سنیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں. جو آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں ان کی بات بہت دھیان سے سنیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہ بھی آداب مجلس میں شمار ہوتا ہے. بلا ضرورت بات نہ کی جائے. موقع محل دیکھ کر بات کی جائے، یعنی کہ وقت دیکھیں اس کا، اور یہ دیکھیں کہ کوئی دوسرا بات تو نہیں کر رہا، اس کے بعد آپ اپنی باری پہ بات کریں. مجلس میں عیب جوئی یعنی کہ کسی کی برائی بیان کرنا. عیب ہوتا ہے برائی، جوئی بیان کرنا. کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے. انڈر لائن کر کے یہاں پہ اس کے اوپر لکھیں، کسی کی برائی بیان کرنا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. فحش کوئی یعنی کہ گندی باتوں سے پرہیز کریں. پرہیز مین انڈر لائن اس کو بھی کر لیجئے اور لکھیے بچنا. بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے، بچنا چاہیے. نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ مجلس ہو. ایسے لوگ جو اچھی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں. متقی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو، پرہیزگار نیکیاں کرنے والے. متقی اور پرہیزگار نیکیاں کرنے والے لوگوں کے ساتھ مجلس ہو، آپ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنی آواز کو پست رکھو، پست رکھا کرو. پست مطلب نیچا، سلو، آہستہ آہستہ بولا کریں. یہ سورہ لقمان میں ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اوپر جو صحیح بخاری، داؤد اور ایک اور بک کا ذکر آیا تھا، ترمذی تھی آئی تھنک سو، تو وہ جون سی ہیں وہ ہیں صحیح احادیث مبارکہ کی بکس. ٹھیک ہے. اور یہ جو بک ہے نا، یہ آپ کی قرآن پاک میں سے سورہ لقمان میں سے ترجمہ لیا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھا کرو، یعنی کہ نیچی رکھا کرو. ذوق سماعت اور یکسو نہ ہونے والے کو مجلس میں پیچھے بیٹھنا چاہیے. ذوق سماعت یعنی کہ سننے کا طریقہ سلیقہ نہ ہو. جس کو ذوق کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، سلیقہ. سماعت سننے کا طریقہ، اور یکسو توجہ سے سننا. اپنے جو کنسنٹریشن نہ رکھ سکتا ہو، اس کا دھیان بٹ جاتا ہو، سوچ بچار میں گم ہو جاتا ہو، یا باتیں وغیرہ کرنے کی اس کو بہت زیادہ عادت ہو کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ مجلس میں پیچھے بیٹھے. مجلس میں کھانسی، چھینک یا جمائی آنے پر منہ پر کپڑا یا بایاں ہاتھ الٹا کر کے رکھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اور آخرت کی یاد مجلس کا لازمی جز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مجلس کا لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور آخرت کی یاد بھی کی جائے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دفعہ یہاں سے، اگر ہم ایک دفعہ یہاں آئے ہیں تو ہمیں آخرت میں واپس بھی جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. تو جب انسان اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے تو پھر وہ لازمی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تو یہ الفاظ دہراتے: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے. کہ یہ جو ہے دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. کہ آپ نے یاد کرنی ہے
ठीक है, इसको 3 to 5 टाइम्स आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगी। और ये कोशिश क्या करेंगे, जब भी आप महफिल से, मजलिस से, क्लास से, किसी जगह से उठे तो ये दुआ जरूर पढ़ें। इससे क्या होता है कि सुन्नत भी पूरी हो जाती है और इंसान के गुनाह भी जो है वो माफ हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अस्तगफिरुका, मैं अस्तगफिरुका, तू ही बख्शने वाला है, अतूबु इलैका, मैं तेरी ही तरफ रुजू करता हूँ, यानी कि तुझसे ही तौबा करता हूँ, अतूबु तौबा करता हूँ। तो इसमें सारी अल्लाह ताला की तारीफ है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह ताला पाक है अपनी हमद के साथ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला या देती हूँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत नहीं, इबादत के लायक नहीं। अंता, और तू ही है, अंता अस्तगफिरुका, तुझे से मैं मगफिरत मारता हूँ, मांगती हूँ या मांगता हूँ, वातूबु इलैका, और तौबा करती हूँ तेरी तरफ, या रुजू करता या करती हूँ तेरी तरफ। ठीक है, ये सारा इसमें है कि जो भी हमसे गलती कोताही हुई है तो माफ हो जाए। जब इंसान ये दुआ पढ़ लेता है ना, तो महफिल से जब आप जाते हैं, उठते हैं, तो आपके वो तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं जो आपको पता होता है, और तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं जो आपको नहीं पता होता। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी मजलिस में शामिल होते वक्त आदाब मजलिस का पूरा ख्याल रखें, ताकि दूसरों को हमारी तरफ से कभी शिकायत का मौका ना मिले। ठीक है, अब ये आपकी है खाली जगह। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि आप लोगों ने खाली जगह करनी है। खाली जगह में है, मजलिस का लफ्जी मायनी डैश की, डैश है, बैठने की जगह। क्या है ये, मेरे साथ आपने पढ़ना है, बैठने की जगह। मजलिस का लफ्जी मायनी बैठने की जगह है। मजलिस अल्लाह ताला के डैश के बगैर खत्म ना हो, जिक्र, जिक्र के बगैर खत्म ना हो। लोगों की गर्दनें फैलाते हुए आगे जाना एक नापसंदीदा तरीका है। क्या वर्ड है ये, नापसंदीदा। क्या वर्ड है, नापसंदीदा तरीका है। उसके बाद है, अगर मजलिस में कोई बात कहनी हो तो सदरे मजलिस की इजाजत से कहनी चाहिए। जो मजलिस जिन्होंने मुनाकिद की है या जो आलिम है, यहाँ पर आप सदर मजलिस की जगह आलिम भी लिख सकते हैं कि आलिम की इजाजत से कहनी चाहिए। मजलिस में गुफ्तगू के के दरमियान किसी की बात नहीं काटनी चाहिए। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। इसमें है, मजलिस से मुराद वो मकाम है जहाँ, यहाँ से ये इधर है, कुछ लोग जमा हों। उसके बाद है, जब इंसान मजलिस में जाए तो उससे जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाए। मजलिस में आए तो सलाम करके बैठे, लेकिन अगर, नंबर फर्स्ट पे आइए, कोई बातचीत जारी हो तो खामोशी से बैठ जाए। नंबर फोर्थ पे है कि अगर बहुत से लोग इकट्ठे बोलने की कोशिश करेंगे, ये छोटी सी लाइन है यहाँ पे, तो मजलिस शोर शराबे की नजर हो जाएगी, यानी कि शोर शराबा जो है वो उस पर हावी हो जाएगा और बात वहीं की वहीं रह जाएगी। मजलिस में किसी को उठाकर उसकी जगह बैठना सेकंड नंबर पे अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कि मजलिस से क्या मुराद है। मजलिस का मायनी है बैठने की जगह, ये इन्वर्टेड कोमाज में है, आपने भी इसी तरह से लिखना है। इससे मुराद वो मकाम है जहाँ कुछ लोग जमा होकर आपस में गुफ्तगू करें। हकीकत में किसी जगह लोगों का मिलजुल कर इकट्ठे बैठना मजलिस कहलाता है। ठीक है, कि असल में मजलिस का मतलब जो है वो मायनी डिक्शनरी में आप देखें, मजलिस का मायनी उर्दू डिक्शनरी में देखें तो वो गैदरिंग यानी कि बैठने की जगह है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आम जिंदगी की तरफ गौर करें तो इसका मतलब है कि हम बहुत से लोग जहाँ पे, या कुछ लोग जहाँ पे मिलजुल कर इकट्ठे बैठे और किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू करें, उसको मजलिस कहा जाता है। ठीक है, 2, 4, 6, एक अकेला और 2 जो है वो 11 कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन 2 जो हैं वो बैठेंगे तो मजलिस के जो आदाब हैं वो उन पे लागू हो जाएंगे। अब मजलिस में ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मजलिस में नए शामिल होने वाले को कहाँ बैठना चाहिए। मजलिस में नए शामिल होने वाले को चाहिए कि गुस्सा ना करे और जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाए। ठीक है, और नंबर थर्ड है, मजलिस में सरगोशी करना कैसा अमल है। मजलिस में सरगोशी नहीं करनी चाहिए, ये आदाब मजलिस के खिलाफ बात है। और मजलिस के 6 आदाब बयान करें। अब ये बेटा मजलिस के यहाँ पे जो 6 आदाब हैं ना, ये एक बात आप लोगों के याद रखने की है कि ये 6 आदाब हैं, आप यही लिख लें। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई मुश्किल लगता है तो आप जो आपके लेसन में दिए गए हैं उनमें से आप देख के तो यहाँ पर और भी कोई लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आते या मुश्किल लगते हैं लिखने में तो आप दूसरे वाले भी इसमें कोई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ये कि लेसन के अंदर से ही हो, वो नीट एंड क्लीन आप लोगों ने करना है। ठीक है, और नंबरिंग आपने करनी है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे जगह है, यहाँ स्पेस मैंने सेकंड लाइन की छोड़ दिया आपने,
सेकंड नंबर जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। नंबर थर्ड, जहां मुनासिब जगह मिले वहां बैठ जाएं। फोर्थ, बाद में आने वाले का पहले से बैठे हुए लोगों की गर्दनें फलांगना अच्छा तरीका नहीं है। फलांगना यानी कि कूद के आगे जाना अच्छी बात नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। नंबर फाइव, दो आदमियों के दरमियान इस तरह ना बैठे कि इनकी तकलीफ का बास हो। नंबर सिक्स, जो शख्स पहले आया हो उसे चाहिए कि वो आगे बैठ जाए और रास्ते में ना बैठे। ठीक है। मजलिस में कुशादगी पैदा करने के मुतालिक अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। कुशादगी का मतलब होता है वसी करना, स्पेस पैदा करना, प्लेस पैदा करना, किसी के लिए किसी को जगह देना। ठीक है। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर आप मजलिस में महफिल में कहीं बैठे हुए हों तो किसी नेक्स्ट पर्सन जो अभी न्यू एंटर हुए हैं उनको आप जगह दें। आदाब मजलिस के मुतालिक इस्लाम हमें तालीम देता है कि मजलिस में इस तरह बैठना चाहिए कि दूसरों का भी ख्याल रखा जाए और इनके लिए तंगी पैदा ना की जाए। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुल कर बैठो तो खुल कर बैठा करो, अल्लाह कुशादगी बख्शेगा। जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। सूरह मुजादला, ये कुरान पाक की आयत का तर्जमा है, सूरह मुजादला का। और इसकी जो 11 लिखा हुआ है ना, इट मीन्स कि ये आयत नंबर 11 है। ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा बेटा, आप लोगों का अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई है या रिपीट करवाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। आप हैंड रेज कीजिए, मैं आप लोगों को आंसर करती हूँ। ठीक है। और इससे पहले ये कि आप लोगों ने इस लेसन को 3 टाइम्स रीड करना है। मैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में इसकी रीडिंग भी सुनूंगी और इसका आपका टेस्ट भी होगा साथ ही। ठीक है। मैं आप लोगों से इसका टेस्ट लूंगी फुल लेसन का, किसी से भी शॉर्ट एंड लॉन्ग। कल का दिन है आप लोगों के पास, इसको अच्छा सा आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है। बेटा एक बात और है कि क्लास स्टार्ट हुए काफी देर हो चुकी है और आप लोग कोशिश किया करें कि इन टाइम क्लास ज्वाइन किया करें। ठीक है। अब ये बेटा मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। मारिया आसिफ, अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। आपने जल्दी जल्दी से अनम्यूट करना है बेटा। मारिया, अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। आई हैव अनम्यूटेड यू।